محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على الصادقين والإحسان والليل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والصلاة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا والمرسلين سيد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الذين أظهر الله وخلهم الإنسى وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد أعدائهم وقتلة وغاسل ومنكر ومنكر فضائلهم ومسائلهم وفجاعتهم وسخافتهم وبلايتهم وعظمتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر إبراهيم ربه بالكلمات الفاتحة قال إن ذلك للناس ومعين وقال من ذريتي وقال لا ينال على الظالمين والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مایا جو اپنی باقاعدہ طور پر اور اس 1444 ہجری کا پہلا محرم جس کا پہلا کرنا ہے. اور جب بھی یہ ماہ اعضاء کا چاند کبھی بادلوں میں اور آسمانوں میں طلوع ہوتا ہے تو جتنے بھی رسالت مآب کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کلمہ ہو ہیں ان میں جو حقیقی محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں سے اشک جاری ہوا. رونا ایک بائی نیچر ہے. رونا ایسا ہے کہ لوگوں کی نیندوں کو اڑا دیتا ہے. یہ تو ہم اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ ماہ محرم یہ اسلام کا پہلا مہینہ اور آغاز. اور بھی تاریخیں ہم نے دیکھی ان لوگوں کے یہاں جب سال کا مہینہ پہلا ہوتا ہے تو نہ جانے کیسے کیسے لواب میں رہتے ہیں. مگر یہ واحد قوم ہے کہ جو اسلام کے پہلے دن کے آغاز جو کرتے ہیں وہ اپنے لیے اور آپ دیکھیے. رونا کیا ہے؟ رونا وہ ہے کہ اچھوں کی نیندوں کو اڑا دیتا ہے. دلیل یہ ہے کہ جب بھی مصائب کا جملہ ہے اور مصائب کے لحاظ سے میں فضائل میں قول رہا ہوں کہ جناب سرکاری رسالت مآب کی وفات کے بعد بنت رسول جب بھی اپنے بابا کو فراق میں روتی تھی تو لوگ وہی کے لوگ کہتے تھے کہ ابو الحسن بنت رسول سے کہہ دو کہ وہ کم رویا کرے, ان کے رونے سے ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں. یعنی رونا ایک نیچر میں ہے اور سارے فتوے اسی پہ لگتے ہیں. مگر حاضر گرامی قدر اگر فتوے دینا تو سب سے پہلے فتوے ادھر دیا جائے کہ جب بھی بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ روتا ہے.
यानी रोना अलामत ज़िंदगी है, रोना रूह ज़िंदगी है, रोना हमारी पहचान है। अगर हम नहीं रोएंगे तो आप रोना शुरू कर देंगे। और जिस घर में अगर बच्चा आए अगर वो गिरिया न करे तो घर वाले शोक में डूब जाते हैं। यानी रो कर बताना इस बात की अलामत है कि अगर रोना है तो उसके बाद जिंदगी है, और करें आप रोना है तो उसके बाद जिंदगी शुरू होती है। ये बातें मैं क्या बात बयान करूं, मगर ये देखिए रोना कितनी अच्छी कुदरत की बात है कि अगर इंसान किसी भी मज़हब मिल्लत का हो, किसी भी फ़िरक़ मज़ाहिब का हो, जब वो बच्चा सिन बलूग से पहले होता है, याद सुने आप, तो जब वो लड़का 15 साल से कम हो और लड़की 9 साल से कम हो, यानी सिन बलूग तक नहीं पहुंचा हो, जब भी वो रोएगा तो लोग कहेंगे मासूम है, रोएगा तो कहेंगे कि मासूम है, यानी मासूम है। यानी हम जैसे खातून खातिर ये बच्चे जब ये सिन बलूग से पहले जब रोता है तो उसकी अलामत ये बनती है कि वो मासूम है, वो मासूम है। तो जो हम माह अज़ा में फर्श अज़ा बिछाकर जिन मासूम के लिए हम भी क्या करते हैं, तो वो कितने बड़े मासूम होंगे। थोड़ा भेजे मोहम्मद वाले रोने के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई, उसके बाद ये फतवे दिए गए। ऐसा नहीं 1400 साल से हम पर फतवे लग रहे हैं। हर बादशाहों की तलवारें हमारे गर्दनों पर हैं, मगर उसके बावजूद भी हम दलील देते रहे कुरान की आयतों से। इसलिए कुरान के अलावा कुछ मांगते नहीं, और आखिरत के चाहने वाले कुरान के अलावा कुछ देते नहीं। और जहाँ से आप मांगे तो वही से हम देंगे। तो जाहिर सी बात है, एक शेर लिखा गया, ये लिखा गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर के जब हुसैन जिंदो जावेद तो क्यों मातम करते, यही बहुत मजबूर है भाई, बहुत लोगों ने जवाब दिया था। मगर एक हकीर ये जब आया तो आने के बाद इसी लखनऊ में और आजमगढ़ में ये सवाल तय नहीं पूछा गया, तो कहा कि जिंदा जावेद तो क्यों मातम करते हैं। आपने कहा बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्या आपके नजरों से क्या कुरान में जनाब याकूब और जनाब यूसुफ का वाक़या नहीं गुजरा? क्या जनाब याकूब और जनाब यूसुफ का वाक़या नहीं गुजरा? क्या गुजरा है? क्या गुजरा तो पूछते क्यों है? हमने पूछा कि ये बताया कि जनाब याकूब और यूसुफ क्यों रोए। जनाब याकूब कहा कि इसलिए कि जनाब याकूब अपने बेटे यूसुफ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, और जब अपने बेटे के कहने के बिना पर उन्होंने यूसुफ को उनके हवाले किया अपने बेटे पर, और जब वो आया तो साथ में यूसुफ न थे। जब साथ में यूसुफ न थे तो बाप ने पूछा कि मेरा बेटा यूसुफ कहाँ है? कहा कि उसको दरिंदों ने खा लिया है। अल्लाह अकबर, दरिंदों ने खा लिया। अब जनाब याकूब निकले और निकलने के बाद पूछा दरिंदों से, कहा कि ये बताओ कि क्या तुमने हमारे बेटे यूसुफ को खा लिया? कहा या नबी अल्लाह, आप तो जानते हमसे बेहतर कि हम पर नबी और नबी ज़ादे का गोश्त हम पर हराम है। अल्लाह अकबर, नबी और नबी ज़ादे का गोश्त हम पर हराम है। फिर दरिंदों को पता है कि नबी की अहमियत क्या है, मगर अक्ल के अंधों को नहीं पता कि नबी क्या है। बेटे मोहम्मद वाले मोहम्मद नबी को पता है। इसके बाद जनाबे याकूब बाहर निकले और निकलने के बाद कहा कि दुआएं कर रहे थे। उसके बाद मलकुल मौत से पूछ लिया, कहा तुमने मेरे बेटे यूसुफ को तुमने रूह कब्ज कर ली? कहा या नबी अल्लाह, हमने ये हमारी फहरिस्त में है ही नहीं, कि हम जानते ही नहीं कि हम जनाब यूसुफ को रूह कब्ज कर लिया। क्या आप ये बताएं कि क्या कुरान ने क्या लिखा कि जनाबे यूसुफ के फराक में जनाबे याकूब की आंख सफेद हो चुकी थी। अल्लाह ने क्या कहा? फहुवा कज़ीम, कहा ये सब्र में है, ये सब्र करने वालों में से है, ये सब्र करने वालों में से। अगर रोना बिदअत होता तो अल्लाह को जनाब याकूब को रोकना चाहिए था। कि जनाब याकूब को रोकना चाहिए था, ये मेरे नबी तुमको रोकना है, तुम्हें ये रोना तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। मगर ये कोई बातें नहीं लिखी, बल्कि क्या अल्लाह ने
کہ جب دیکھا کہ جناب یعقوب اپنے بیٹے کے فرات میں، اپنے بیٹے کی جدائی میں جب ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تو اللہ نے کہا فہو کظیم، یہ صبر کرنے والوں میں ہے، یہ ضبط کرنے والوں میں سے۔ ہدایت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ سوگوار ماتم دارا نے سرکاری شورا سنیے گا جملہ، کہا کہ کیا جناب یعقوب کو پتا نہیں تھا؟ کہ جناب یعقوب کو پتا تھا، دونوں لوگوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ نہ ملک الموت نے روح قبض کیا ہے نہ درندوں نے کھایا ہے۔ تو جناب یعقوب کو پتا تھا کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے۔ اللہ اکبر! نہ جانے آپ کہاں پر ہوں گے، نہ چوتھے آسمان کی سیر کریں گے کہ جناب یعقوب کو پتا تھا کہ جناب یوسف زندہ ہے، مگر جناب یعقوب کو پتا ہونے کے باوجود کہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ جناب یعقوب سے جناب یوسف بچھڑ گئے، فراق ہو گیا، جدائی آ گئی۔ کہا گیا، تاریخ میں لکھا گیا کہ جناب یعقوب کو پتا تھا مگر اس کے باوجود رو رہے تھے کہ وہ زندہ تھے۔ کیوں رو رہے تھے؟ کہا کہ وہ ان سے بچھڑ چکے تھے، وہ ان سے جدا ہو گئے تھے۔ اب سوال پوچھنے والوں ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ حسین پہ کیوں روتے ہو؟ بھائی ہم جانتے کہ حسین زندہ و جاوید ہے، ہم اس لیے روتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں نے، رسول کی امتیوں نے ہم سے حسین کو چھین لیا ہے۔ محمد وآل محمد۔ اور خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں پر، اور نہ جانے اس عمر میں کافی جگہوں پر ہم نے خطاب کیا، مجمع میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ اور چونکہ اگر مولائے کائنات کو اگر کوانٹٹی کی ضرورت ہوتی تو بتائیے مولائے کائنات کی تحقیقات کافی نہ تھی، ان کو کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے۔ تو لہٰذا جب اس کی سماعت ہو اور جن کے لیے فرش ادا بچھا ہو تو یہاں پر زیادہ کثیر تعداد نہیں بلکہ جتنے بھی آئیں سماعت اونچی ہونی چاہیے۔ اور کریں آپ، اور دیکھیے یہ بہت ایسے جگہ پہ گئے کہ جہاں پر مجمع بہت زیادہ ملا مگر سننے والے چند ہی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ ہاتھ آپ کو اٹھے مدح اہل بیت میں یہ آپ کی تائید بنے۔ تو لہٰذا ہم نے ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں انشاءاللہ ایک ہم نے موضوع کو قرار دیا ہے، اور چونکہ یہ موضوع قرار کیوں دیا یا تو 9 دنوں میں معلوم پڑ جائے گا کہ جناب ابراہیم سے لے کر جناب امام حسین تک کیوں قرار دیا انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ ابراہیم کو لوگ کیوں چھوڑ چکے، اور اسلام کو اگر جاننا ہے تو جناب ابراہیم سے آپ پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ اس لیے کہ آپ کو اہل بیت سمجھ میں نہ آئیں گے، جناب ابو طالب سمجھ میں نہ آئیں گے جب تک جناب ابراہیم کے واقعات کو اور جناب ابراہیم کو نہ جانیں۔ تو لہٰذا ایک تاریخ کا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہیں سے میں آغاز کرتا ہوں، اور میں اپنے موضوع سے فیملیئر ہونا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا يَرْفَعُ ابراہیم قواعد من البیت، کہ جناب ابراہیم نے، یہ بیمار کعبہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے کعبے کو بنایا ہے، مگر ذرا آپ کے ذہن کو میں جوڑوں گا ضرور، اور کچھ باتیں میں کہوں گا جس سے پہلے کبھی آپ نے سماعت نہ کی ہوگی، کہ جناب ابراہیم نے دیوار کو بلند کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کیا، یعنی جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد نہیں رکھی۔ اگر بنیاد رکھی ہوتی تو آیت یہ ہوتی وَإِذْ بُنِيَ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یعنی جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ دیوار کو بلند کیا۔ آخر کون ہے کہ جو سب سے پہلے بنیاد رکھی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جب بات نہیں ہوتی ہے تو گفتگو بھی عام ہونا چاہیے اور حوالے کے ساتھ ہونا چاہیے، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بنایا گیا، مگر میں 2 عالم ربانی کی، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی میں ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے روایت کی ہے چھٹے امام سے، کہا کہ خانہ کعبہ نازل ہوا ہے۔ اگر جب قرآن نازل ہو سکتا ہے تو کعبہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ روایت تھی چھٹے امام سے، کتاب کا نام ملیحۃ الفقیہ اور علل الشرائع، چھٹے امام سے روایت۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جب تک تم جناب ابراہیم کو یہ سوچتے رہو گے کہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے
तब तक तुम्हारे जहन में यही होगा कि खाने काबा नाजिल नहीं हुआ। और अगर ये सोचोगे कि तुम्हारे जहन में बुनियाद जनाब आदम ने रखी है, इसलिए कि जनाब आदम को जब अल्लाह ने जमीन पर भेजा, जरा देख के तारीख का सर्वे करिए आप, जनाब आदम को अल्लाह ने जमीन पर भेजा, कहाँ पर? इसी श्रीलंका के समंदर के पहाड़ियों के बीच में भेजा, और जनाब हवा को भेजा जद्दा में, और उसके बाद वहाँ से चले और हुक्म हुआ परवरदिगार कि तुम चलो और बकरी की तरफ चलते रहो, और जाते जाते जहाँ पर वो कोहे सफ़ा है और कोहे मरवा है, वहाँ पर जनाब आदम के जो कदम पड़े तो वो जगह कोहे सफ़ा कहलाई, और जहाँ पर जनाब हवा के कदम पड़े तो वो कोहे मरवा कहलाए। मरवा का मतलब होती है औरत की, और जद्दा को उतरी थी जनाब हवा, तो जद्दा को जद्दा इसलिए कहा जाता है कि तमाम औरतों की जद्दा को जद्दा इसलिए कहा जाता है कि तमाम औरतों की जद्दा उतरी थी, लिहाजा जद्दा को जद्दा कहा जाता है। अब चूंकि इतने सालों और अरसों के बाद जब ये दोनों ने एक दूसरे को देखा, और वही फराक है, मोहब्बत है, लोग आए दौड़ते हुए, मुलाकात हुई, और उसके बाद अल्लाह ने कहा कि आदम यहाँ पर हमारा घर बनाओ, यहाँ पर हमारा घर बनाओ, इबादत कदा बनाओ। जनाब जिब्रील जन्नत से अर्श से एक सतून लेकर आए जो याकूत का था, और एक पर्दा लेकर आए, कहा कि जरा आदम यहीं पे तुम सतून को नस्ब करो, बिल्कुल जमीन के सेंटर में। सेंटर याद रखिएगा, इसका फायदा मैं कल उठाऊंगा। आप बिल्कुल इसी जमीन के सेंटर में रखना, और रखने के बाद लगाना, और इसी पर्दे का तुम अहाता कर लेना। उसके बाद जनाब आदम ने वैसे ही किया जैसे जनाब इब्राहिम बोल कर गए थे। और देखिए उसके बाद कुरान, आप भी वहाँ पे हैरान हो जाएंगे कि कैसे हो सकता है सरकार पहला घर क्यों ना हो। ये बताइए कुरान की आयत है कि नहीं है कि इन्ना बैते वज़ू लिन्नास, इन्ना अव्वल बैतुम वज़ा लिन्नास, ये पहला घर है लोगों के लिए जो हिदायत बनकर आया है आलमीन के लिए, हुदा लिल आलमीन, ये तमाम आलमीन की हिदायत बनकर आया है। अमर कुरान जो है मुत्तक़ियों की हिदायत के लिए जब आता है तो वो नाजिल होता है, और जो पूरा ये खाने काबा आलमीन की हिदायत के लिए हो वो नाजिल क्यों नहीं हो सकता। अब उसके बाद तमाम आलमीन की हिदायत के लिए आया। अब ये सवाल ये है कि आखिर कैसे हो सकता है कि जनाब इब्राहिम ने अगर बुनियाद रखी, क्या जनाब इब्राहिम से पहले जमाना न था? क्या आदम ना आए? क्या जनाब इदरीस ना आए? कि खुद जनाब नूह ना आए? कहा कि मुझसे पहले कहाँ रहते थे? क्या जंगलों में रहते थे? कहा नहीं, ये आयत बता रही है कि अगर कायनात में सबसे पहला जो घर बना वो अल्लाह का घर बना, पहला बैत था। पूरी कायनात में जितने घर हैं, जितनी मस्जिदें हैं, जितने ब्याजा खाने हैं, सब नकले खाने काबा है। अल्लाह अकबर, कैसे सुन रहे हैं भाई? ये नकले काबा है, ये नकले काबा। जनाब आदम को जनाब जिब्रील ने बताया कि नस्ब करो, और नस्ब करने के बाद यहाँ पर वो 4 दीवारी वो पर्दे आप लगा दें। अब जनाब आदम वो बुनियाद रखी। अब उसके बाद जनाब आदम का दौर खत्म हुआ। अब जनाब इदरीस आए। जनाब इदरीस को इदरीस क्यों कहा जाता है? कि जनाब इदरीस को इसलिए कहा जाता है कि वो दर्स देते थे। दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी कायम करने वाले का नाम है जनाब इदरीस। इदरीस का असल नाम था अपनू, मगर वो इतना ज़्यादा दर्स दिया करते थे, लिहाजा उनके लक़ब पड़ गया कि इदरीस है, तदरीस दर्स देने वाले। और अल्लाह ने कहा कि इदरीस जाओ खाने काबा के करीब हमारी कदा पर, और जाने के बाद वहाँ पे कुछ तुम ईंटें रख दो, कुछ पत्थरों को रख दो। अब वहाँ पर उन्होंने कुछ पत्थरों को रखा, और उसके बाद दौर आया जनाब नूह का। अब वो नूह का आपको 1000 बार का वाक़ा सुना है, तो बहुत तेज़ी से मैं आना चाहता हूँ, इसलिए कि वह और भी मुझे आगे गाना है, वक्त भी बहुत कम है, तो और पढ़ते रहें। मोहम्मद वाले तो जनाब इब्राहिम से पहले जनाब नूह आए, और नूह को 1000 बार का वाक़ा सुना हुआ कि जनाब नूह का जो तूफान आया उनको उम्मतियों के लिए, मगर इससे पहले अल्लाह तूफान और वो अजाब डालने से कब अल्लाह ने ज़मीन को उठा लिया, और उसके बाद जितने भी अजाब आए और वो कश्ती पे सवार, और कश्ती पे सवार होने के बाद वो कोहे जूदी पे आकर उनकी कश्ती रुकी। अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरे नबी ए नूह यहाँ जाओ, और वहाँ पर जो ज़मीनें हमने उठा ली थी वहाँ के करीब जाओ, और वहाँ पर एक ताबूत है, वो ताबूत लेकर उसको निकालो, और लेकर जहाँ बताते हैं वहाँ लेकर पहुँच जाओ। जनाब नूह आए,
खाने काबा की करीब जमीन के अंदर उन्होंने खोदा, और भी अकेले तनहा नहीं बल्कि साथ में उनके 3 बेटे थे, शाम, हाफिज और हाम, ये तीनों साथ दिए। और देने के बाद उस ताबूत निकला, ताबूत जो बरामद हुआ तो जनाब नूह ने कहा परवरदिगार ये किसका है जनाजा? कहा तुम्हारे जद का है, ये हजरत आदम की कब्र है और ये जनाजा जो है ये हजरत आदम का है। तो कहा कि आखिर करना क्या चाहते हैं? कि हम चाहते हैं कि फला मकाम पर चले जाएं, वहां पे दफन करें। कहा परवरदिगार इतनी बड़ी अजमत वाली जगह जिन्होंने बिना रखी है खाने काबा की, तेरी इबादत गाह है, सारे मुसलमानों को बुलाना है, इससे बड़ी अजमत वाली जगह तो हो नहीं सकती, फिर मेरे जग को क्यों निकाल रहा है? कहा कि जो मेरी हिकमत है उससे तुम आगाह नहीं हो, जो मेरी हिकमत है उससे तुम आगाह नहीं हो। कहा परवरदिगार अब तेरी हिकमत है, लिहाजा मुझे अपने जग को लेकर जाना है। कहा कि आप बताएं। कहा कि जाओ, एक जगह है उस पहाड़ियों के करीब जिसे नजफ कहते हैं, इसलिए कि नजफ में वो पहाड़ी है, पहाड़ियों के सारे पानी एक जगह जमा होते थे, इसलिए नजफ से पहले नाम नजफ था। नून ये जिम से मगर कसरत इस्तेमाल में उसको नजफ कहने लगे। कहा कि वो लेकर जब आए, जरा बातें सुनिएगा, बड़ी गहराई की बात है। जनाब आदम की जब कब लेकर आए और आने के बाद कहा कि उस पहाड़ी पर आए तो दफन करना चाहने से कब जनाब नूह ने कहा कि परवरदिगार आखिर वजह क्या है, आखिर इल्लत क्या है, इस जगह की क्या अजमत है? कहा कि सुनो, खाने काबा तो है एहतराम वाला मोहतरम है, मगर खाने काबा सदफ है और गौहर नजफ है। सदफ जो है खाने काबा है और गौहर रियाज भाई नजफ है। कहा कि आखिर इसकी अजमत क्या है? कहा सुनो, ये खाने काबा जो है ये जनाब आदम ने इसकी बुनियाद रखी और कुछ तुमने भी साथ दिया, बड़ी मेहनतें की आदम ने, बड़ी काबिशें की हैं, लिहाजा हमने उसका समर ये दिया है कि हम इस जगह पर उसको दफन करेंगे, इसको दफन करेगा। कहा क्यों परवरदिगार? कहा कि खाने काबा में एक मौलूद आएगा जो कयामत तक के लिए इस जमीन पर आराम करेगा, जमीन पर आराम करेगा और वो तमाम सारे आलमीन के लिए रहमत बन करेगा। सुनो नूह, हम जब भी चाहते हैं कि अपने नबी से गुफ्तगू करें तो हम यही से गुफ्तगू करते हैं, हम यही से गुफ्तगू करते हैं, हम यही से गुफ्तगू करते हैं। जब जनाब नूह ने सारी बातों को सुना, कहा परवरदिगार क्या कहने तेरी हिकमत के। भाई जनाब आदम ने, मेरे दादा ने, मेरे जद ने इतनी मेहनतें की हैं, उसका समर ये मिल रहा है कि पूरी कायनात का जो मालिक है उसके बगल में जगह मिल रही है। मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा? कहा कि तू भी चाहता है? कहा कि जब आखिरी वक्त है इसी जगह पर आ जाना, यहीं पे दफन हो जाना। अब 2 नबियों के बीच में 2 नबी हैं, एक है आदम, एक है नूह। आदम को क्या कहा जाता है? आदम को क्या कहा जाता है? अव्वल इंसान, यानी अव्वल इंसान है। आदम है अव्वल इंसान, जनाब नूह है आदम सानी, यानी आदम सानी। दोनों के दरमियान में मेरा मौला कायनात सो रहा है, मेरा मौला है कायनात सो रहा है। एक है अबू तुराब, एक है इब्ने तुराब, एक है सफीना निजात, एक है मालिक नजात और आदम सानी और अबू तुराब इब्ने तुराब के दरमियान में मेरा मौला सो रहा है। और सोने के बाद इसीलिए जब भी ज़ियारत नजब में जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, वहाँ पे 2 ज़ियारतें पढ़ी जाती हैं। जनाब आदम की भी ज़ियारतें पढ़ी जाती हैं, जनाब नूह की भी ज़ियारतें पढ़ी जाती हैं। ये 2 नूह और आदम ये सो के पूरी कायनात को पैगाम दे रहे हैं कि जब हम आदम होकर और हम आदम सानी होकर जब हम अली के दामन से वाबस्ता आदम होकर इनके बराबरी नहीं कर सकते। फिर तुम्हारी हैसियत क्या है, फिर तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी मंजिलत क्या है? अब सरकार बातें आगे बढ़ी तो जनाबे रसालत माब ने भी कहा कि अली क्या कहने तुम्हारे, क्या कहने तुम्हारी कि तुम्हारा पड़ोस बहुत अच्छा है, तुम्हारा पड़ोस बहुत अच्छा है। या रसूल अल्लाह आप भी तो हैं अहले बैत के बुजुर्ग हैं, आप भी तो खानदान अहले बैत चला है, आप भी आपके पास क्यों मस्जिद क्यों जो है मौजूदा नहीं होता? भाई देखिए करबला में मौजूदा होता है, काज़मैन में मौजूदा होता है, सामर्रा में मौजूदा होता है। सरकार आप तो इनके वालिद हैं,
آپ تو ان کے باپ ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ کیوں معجزہ نہیں کراتے, آپ معجزہ کیوں نہیں کراتے؟ کہا دیکھو جو جہاں پر ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہے, معصوموں کے ساتھ ہے, لہذا جو بھی معجزہ دکھائے گا وہ کسی نہ کسی سے منسوب ہو جائے گا, مگر اگر ہم معجزہ دکھائیں گے, معجزہ دکھائیں گے ہم, نام ان کا ہوگا. جناب ابراہیم نے دیوار کو بلند کیا اور جناب آدم سے کہا کہ یہ ستون لو اور ستون یہاں پر دفن کرو, لگاؤ اور اس کعبے کو احسار کرو اس پردے کے ذریعے. جہاں تک وہ چاندنی وہ روشنی رات کی تاریکیوں میں پہنچی خیمے کی, وہاں تک وہ حرم کہلائی, اور جہاں تک ستون, جہاں تک وہ قندیلیں جو پہنچی, جو لگائی تھی جناب آدم نے, وہ قندیل اس ستون پہ لگائی تھی, جہاں تک اس کو روشنی پہنچی تو وہاں تک وہ حرم کہلائی, اور جو خیمے کی روشنی جو یہاں تک پہنچی وہ بیت کہلائی. بھائی یا تو وہ جہاں بیت ہے یا تو وہ حرم ہے. کوئی کائنات میں خاندان بتاؤ جس کو رسالت مآب نے کہا ہو کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں, کوئی اور خاندان بتاؤ کہ اہل حرم ہے. بھائی یہی خاندان ہے, یا تو اہل بیت ہے یا اہل حرم ہے. تو غور کریں, جناب ابراہیم نے جب انہوں نے جناب آدم نے جب بنا لیا, اس کے بعد جناب ابراہیم کا زمانہ آیا, اور ابراہیم نے جو معمار کعبہ جو دونوں دیواروں کو بلند کیا, تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی پروردگار کہ ہمارے لیے ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم, تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور تو ہی دعاؤں کو پکارنے والا ہے. جو ساری دعائیں انہوں نے کی. مگر سرکار ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم کا جو دور تھا اور اس سے پہلے کچھ ایسے الفاظ تھے عربی کے کہ جو اس سے پہلے اللہ نے بیان نہیں کیا. وہ صرف جناب ابراہیم کے زمانے میں, یعنی آدم سے لے کر نوح تک, وہ لفظ اس سے پہلے کسی نے نہیں سنا تھا. اگر وہ ایجاز ہوا, اللہ نے جو بیان کیا, تو وہ لفظ کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم کے لیے جب اللہ نے کہا, کیونکہ جناب ابراہیم شیخ الانبیاء ہیں, وہ سب کے باپ بھی ہیں, اس لیے کہ جتنے بھی اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب وہیں سے ہیں. اس لیے اگر آپ دیکھیں یہودی کے باپ جناب ابراہیم, عیسائی دیکھیں تو جناب ابراہیم کی بات جناب ابراہیم, اس سے جناب ابراہیم کی دو اولادیں تھی, ایک اسماعیل ایک اسحاق. اسحاق سے جناب موسیٰ بھی جناب عیسیٰ بھی ہیں, مگر جناب اسماعیل سے صرف سرکار رسالت مآب ہے. اور وہ ایک الگ بات ہے, اس طرف میں جانا نہیں چاہتا. تو جناب ابراہیم ہے شیخ الانبیاء, اور اللہ نے کیا کہا جناب ابراہیم کے لیے, وما کان یہودیا ونصرانیا ولکن مسلما حنیفا. کہا کہ ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے, بلکہ ایک تبرہ کرنے والے مسلمان ہیں. تبرہ کرنے والے مسلمان ہیں, یعنی باطل سے کنارہ کش کرنے والے. حنیف کے معنی جائے کہ اٹھا کے لغت اٹھا کے دیکھے گا, حنیف کے معنی یہ ہے کہ باطل سے کنارہ کش ہو کے چلنا, باطل سے مڑ کر چلنا, یعنی حق کی طرف چلنا. بھائی جناب ابراہیم کیا ہے, میں پھر آپ سے سوال کر رہا ہوں, نہ یہ یہودی ہیں نہ یہ نصرانی ہیں, بلکہ یہ پکے سچے مسلمان ہیں. اب یہ بتائے کہ مسلمان ان کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں سے ہیں. یہ مسلمان ان کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمان میں سے ہیں. مسلمان میں سے ان کا ٹائٹل نہیں ہے, مسلمان میں سے ہیں. اب ذرا آپ خاندان عصمت و طہارت میں آئیے کہ جو خود خاندان عصمت و طہارت میں جس کا نام مسلم ہو جائے, جس کا نام مسلم ہو جائے تو اس کی کیا عظمت ہوگی. جناب ابراہیم مسلموں میں سے, مسلمانوں میں سے, کہا کہ نہ یہودی ہیں نہ وہ نصرانی ہیں, بلکہ کیا دیکھیے تاریخ میں ایک جو ہنگامہ جو کیا ہوا, یہ تاریخ ہمارا موضوع نہیں, مگر چاہتا ہوں میں بتاتا ہوا چلوں کہ جو بھی خلافت بنی عباس تھی, یہ اس دور میں
लोगों के हालात ऐसे थे कि वो इल्म की वजह से तशना थे। तशनगी वहां पर आती है कि जब वो समझ जाता है कहीं से इल्म नहीं आ रहा है तो एक बगावत शुरू हो जाती है। करीब था कि खिलाफत बनी अब्बास गुमराह हो जाती, बल्कि बर्बाद हवाला हो जाती। मगर उन्होंने क्या किया कि यहूदियों और ईसाइयों की किताबों को ट्रांसलेट करा करा के अरबी में और वो बगदाद की लाइब्रेरी में भर दिया। जो आज हमारे अंदर जितने भी अख्तिलाफात हैं यही वजह है कि यहूदी की फिक्र ला के डाल दी गई। तो लिहाजा सबसे बड़ी जो गहराई और गिराई जो हुई तो सबसे बाद इस्लाम के लिए नुकसान ये था इल्मी लिहाज से कि ये बनी अब्बास का जमाना। और यही कहा जाता है कि जनाब अबू तालिब के हवाले से कहा सरकार कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अब कलमा पढ़ने की जरूरत क्या होगी? जो ये लिखा जाता है ना, ये लिखा जाता है, आखिर क्यों लिखा जाता है? देखिए थोड़ा सारे समझिए कि मुसलमान क्यों नहीं चाहता कि एक गाय हलीमा एक डिवाइडर बना के रख दिया। अगर ज्यादा रिसालत मार्ग के बारे में जानना चाहते हो तो लिहाजा गाय हलीमा तक बस स्टॉप है। वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, बल्कि कुरान ये कहता है कि रिसालत मार्ग को पहचानना है, सारे नस्लों को पहचानना, तो इब्राहिम से तलाश करो, इब्राहिम से रिश्ता जोड़ो, इब्राहिम तक देखो। जब इब्राहिम समझ में आ जाएंगे तो सब समझ में आ जाएंगे। आखिर वजह क्या, इल्लत क्या है, तो जनाब इब्राहिम तक नहीं पहुंचा। ये मैं आपको सुनाता हूँ। जब सरकारी रिसालत मार्ग जब मक्के और मदीने के जब गलियों में जब आए, मक्के में जब आए, तो उन्होंने तबलीग ये किया कि ये सब के सब झूठे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है, मैं गवाही देता हूँ कि सिर्फ एक ही खुदा है जो सबका पालने वाला है, बस उसके अलावा जितने सब झूठे हैं। ये सारे के सारे अबू तालिब घर के करीब आए। अबू तालिब से कहा कि अबू तालिब, ए इमरान, ये तुम्हारा जो भतीजा, ये तुम्हारा जो भतीजा है हमारे खुदा को झूठा कहता है, कज़्ज़ाब कहता है। कहा कि देखिए तुम्हें साबित हो गया कि भतीजा अबू तालिब का है, खुदा उनका है। भतीजा अबू तालिब का है, खुदा उनका है। कहा कि अबू तालिब मना कर दो। कहा कि अगर मना ना करें तो क्या करोगे? कहा कि हम मार डालेंगे। कहा कि सुनो, हम अल्लाह की तरफ से अपने भतीजे के लिए किला बनकर आए, हाफिज़ किला बनकर आए। जरा देखते तो हैं कि अरब में कितना ताकतवर कोई है कि मेरे भतीजे पर ज़र्ब लगा दे। कहा कि ये बातें जब सुनी भतीजे ने चचा के दहन से, और उसके बाद चचा ने कहा कि मेरे लाल जो चाहो वो बोलो, जो चाहो वो बोलो, हम जरा देखें तो सही इस अरब में कौन हमसे ज्यादा छोटा पैदा हो गया, कौन छोटा पैदा हो गया। कहा चचा अगर ये पूरे लोग हमारे हाथ में एक आफ्ताब और एक महताब रख दे फिर भी मैं आजिज नहीं आऊंगा, तभी करता रहूंगा। उसके बाद कहा कि चचा ने कहा कि बाप करते रहे, हम देखते रहेंगे। ऐसा नहीं किसी तरह अबू तालिब, यार हमजा भी तो हैं, अरे एक चचा थोड़ी, हमजा भी तो हैं। मगर जनाब अबू तालिब ने कहा कि करते रहो तबलीग। उसके बाद जनाब अबू तालिब ने कहा कि मेरे लाल तुम्हारी तबलीग है क्या कहने, मगर मैं आप पर ईमान तो है, आप हमारे चचा हैं, आप हमारे भतीजे हैं, मोहब्बत तो है ये, मगर मेरे लाल मेरा दिल दीन इब्राहिम से खाली नहीं है बल्कि पुर है। मैं दीन इब्राहिम को छोड़ना नहीं चाहता, दीन इब्राहिम को छोड़ना नहीं चाहता, जना दीन इब्राहिम को छोड़ना नहीं चाहता। अरे रिसालत माप तो वही कर रहे हैं। कुरान की आयत क्या है कि सुनो रसूल, तुम कुछ भी तबलीग करते रहो, बल्कि मिल्लत जो पहचानी जाएगी इब्राहिम से पहचानी जाएगी, तुम्हारे बाप से पहचानी जाएगी। मिल्लत अबीकुम इब्राहिमा, तुम्हारे बाप इब्राहिम से मिल्लत पहचानी जाएगी, और जो मिल्लत में होंगे वही मुसलमान होंगे। अमा अबू तालिब को काफिर कहने वालों जरा गौर से देखो, ये अबू तालिब काफिर नहीं है बल्कि वो मिल्लत इब्राहिम में है, मिल्लत इब्राहिम में। अब समझ में आया तो जनाब इब्राहिम को मेमार काबा के बाप पर और खुद मौलूद काबा पर क्यों सोच रहे हैं? इसलिए कि इनकी पुरानी आदत है कि मेमार काबा के बाप पे भी शक किया और मौलूद काबा के बाप पे भी शक किया। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मेमार काबा जनाब इब्राहिम यही समझ नहीं पा रहे कि तारीख है आज़र।
दायरे बाजार में फंसे हुए कि नहीं फंसे हुए, भाई एक आप कंफर्म कर ले। भाई चचा ठीक है, बाप का मंजिल रखता है, कुरान है कि इशारों में गुफ्तगू करता है, कहा कि वो अभी को याद इस्तेमाल किया कुरान में। अच्छा तो भाई चचा भी बाप तो होता है, मगर बाप हकीकी कोई और है ना। जनाब तारिक जो है वो नबी भी गुजरे हैं, वो जनाब इब्राहिम के बाप थे, तो लिहाजा इनकी पुरानी आदतें जनाब इब्राहिम के वालिद गरामी पर शक करने की, और वही हाल है मौलूद काबा की वालिद पर भी शक करने की। मगर सरकार काबे की अजमत यह है कि क्या कहने हैं कि बुनियाद तो जनाब आदम तो रखी है, मगर जो भी अरकान जनाब इब्राहिम, जनाब इस्माइल, जनाब हजरा ने जो किया है उसको ही निशानी है। भाई कुर्बानी उन्हीं की निशानी है। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए आने वाले मुसलमानों के लिए करार दे दिया कि जाओ खाने काबा में, जनाब इस्माइल की जो माँ दौड़ी है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर दौड़ो। दोपहर दरमियान जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी है, लिहाजा जितने भी मुसलमान कलमा को है वो जाएं और जाने के बाद वहाँ पर कुर्बानी पेश करें। तो लिहाजा निशानियाँ जनाब इब्राहिम की उनको उन्होंने करार दे दिया, वाजिबात में दे दिया। अगर आप हज में हैं तो वाजिब है, बाहर अगर हैं हज के दरमियान में नहीं है तो सुन्नत है, तो लिहाजा सुन्नत कहलाई। तो जनाब इब्राहिम वो क्या है, कुरान की आज मैंने पढ़ा इससे पहले, वो काला इन्नी जारिका लिन्नास इमामा कि जनाब इब्राहिम ने जो काबे की मेमार किया वो इमाम था, यानी इमामुन नास है। खाने काबा को बनाने वाला इमाम, खाने काबा को बनाने वाला इमाम, खुद वहाँ पे आने वाला इमाम, क्या कहना है, क्या भाई आने वाला इमाम। वहाँ पे जो मौलूद हरम है, जो मौलूद काबा है वो इमामुल मुबीन है। भाई इब्राहिम इमामुन नास है और जनाबे मौलाए कायनात इमामुल मुबीन है। भाई आप ये समझे कि खाने काबा को जो अब आया तो आने के बाद जरा सोचें कि जनाब खाने काबा क्यों आया है, तो आप बात कर दें ताकि अभी समझ में आए। कल की बात है, मैं आपको ज़्यादा तकरार करने की जरूरत ना पड़े। खाने काबा को अल्लाह ने अपना पहला घर क्यों बनाया, खाने काबा को अल्लाह ने अपना पहला घर क्यों बनाया? क्योंकि तमीरन गुफ्तगू का जिसकी सारी हेडलाइंस है, कल से बस पूरी खाली मौजूद चलेगा और आप सैराब होते रहेंगे। क्यों बनाया पहला घर, क्यों बनाया? देखिए खाने काबा है ज़र्फ, ज़र्फ से मजरूफ को पता चलता है। या यूं कह लिया जाए कि मैं इशारा करूं किसी को, कहा कि मुझे पानी की तरफ है, ये प्यास, तो क्या होगा कि आप गिलास उठाएंगे, अब गिलास उठाने के बाद आप लेकर आए, मैं कहूँगा मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना, गिलास क्यों लेकर आ गए? क्या मौलाना आप तो मजी ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि पानी के लिए, भाई पानी के लिए गिलास का होना जरूरी है। अगर सिर्फ पानी लाएगा तो गिर जाएगा, तो पानी की हिफाजत के लिए गिलास का होना बहुत जरूरी है, सर्फ का होना बहुत जरूरी है। यानी अब आपके सर पे मैं कुरान रख के पूछ रहा हूँ कि पानी पहले है या गिलास बाद पहले है? पानी पहले है या गिलास पहले? लोग एक जबान होकर कहेंगे पानी पहले। अगर पानी न होता, पानी न होता तो गिलास वजूद में न आता, गिलास वजूद में न आता, गिलास वजूद में नहीं आता, गिलास वजूद में नहीं आता। इसलिए कि ज़र्फ मजरूफ को पता देता, समझ गए बात? अब खाने काबा है ज़र्फ, अल्लाह अकबर, खाने काबा है ज़र्फ। इस खाने काबा में किसी को आना था, लिहाजा अल्लाह ने पहले काबे को भेजा, बाद मौलूद काबा को भेजा। मोहम्मद वाले मोहम्मद, मौलूद काबा को भेजा, काबा को बनाने वाला इमाम, काबे में आने वाला इमाम और काबे को बचाने वाला भी इमाम। इसलिए कि मासूम ही है जो अल्लाह के दीन की हिफाजत कर सकता है। हद हो गई सरकार कि जब यही रसूल के कलमा गो ने
रसूल के नवासे से बैत तलब कर ली, और खास करके मदीने में। और जो मदीने में तलब किया तो दरबार के कुछ लोग आए, कहा कि आपको बादशाह ने, गवर्नर ने तलब किया। जनाब ज़ैनब ने इस मंजर को देखा और कहा कि मेरे भैया हुसैन, हम नहीं चाहते कि आप तनहा जाएं, हम चाहते ये हैं कि आपके साथ हम अब्बास को भेजना चाहते हैं। तो बिल्कुल जनाब अब्बास साथ में, अली अकबर साथ में, सारे खानदान बनी हाशिम साथ में। जनाब इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बास, जब हमारी आवाज़ बुलंद हो जाए तभी आना दरबार में, उससे पहले ना आना। ऐसी आता जनाब इमाम हुसैन की कुछ गुफ्तगू हुई कि मलऊन ने कहा कि बैत करो, कहा कि देखो रात के तारीखों में ये अली का बेटा बात नहीं करता, दिन को उजाले में बात नहीं। कहा कि इसी मलऊन में से आवाज़ है कि ऐसा है कि आप कत्ल कर दें तो हुसैन हाथ ना आएंगे, हुसैन हाथ ना आएंगे। जब ये बातें सुनी अली के लाल को गैज़ आया कि मेरे नाना के शहर में कौन मुझे धमका रहा है। ये आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि ये आवाज़ खुद फजील अब्बास के कानों से टकराई। जनाब अब्बास ने दरबार के दरवाजे को तोड़कर अपने आका को हिसार में लिया कि हमारी ज़िंदगी में हुसैन पर आँच आ जाए, ये मुमकिन नहीं है। अब इमाम हुसैन आए, आने के बाद तो अब्बास और अकबर, अब सामान सफ़र आमादा करो, सामान सफ़र आमादा करो, महमीद सलाम हम आते हैं। अब जनाब आका हुसैन अपने नाना के रोज़े पर पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद का सलाम हो आप पर, ए नाना, ये आपके कलमा गो हैं जो आप हमारे खून के प्यासे हो चुके हैं। अब अगर हम चूटी के बिलों में पहुँच जाएं तो वहाँ से निकाल के हमें खत्म कर देंगे। ए नाना, जो वादा था वो हक अदा करने का वक्त आ चुका है। अपने नाना को खुदा हाफिज किया कि जनाब तारीख बताती कि जनाब आका हुसैन अपने भैया हसन की तरफ पहुँचे। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे शहजादा दूसरे शहजादे से मिलने के लिए जा रहा है। अब जनाब इमाम हुसैन पहुँचेगा, मेरे भैया खुदा हाफिज, अभी तुम्हारा भाई इस मदीने को छोड़कर मख्तर की तरफ रवाना हो चुका है। नाना से किया हुआ वादा वो हमें पूरा करना है। खुदा हाफिज किया, मगर तारीख की कलेजा फट गया है, तारीख का कलेजा फट गया। कहा कि जैसे ये बेटा हुसैन अपनी माँ की कब्र की तरफ रवाना हुआ तो तारीख कहती है कि हुसैन ऐसे चल रहे थे जैसे छोटा हुआ बच्चा अपने घुटनियों के बल अपनी माँ की आगोश से लिपटता है। और आया और आने के बाद हुसैन कहते कि अम्मा, अब हम जा रहे हैं, हम मदीना छोड़ रहे हैं, मगर हम तनहा तो नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम सबको भी नहीं लेकर जा रहे हैं, मगर आपकी कब्र चिरागा रहे और अंधेरी ना रहे, लिहाजा अपनी बेटी को और साथ में उम्मुल बनीन को हम छोड़े जा रहे हैं। और उम्मे सलमा भी है जो आपकी चिरागा करेगी। मगर आवाज़ आई कि जाके अब्बास को बुलाओ। अब्बास आए, हुसैन ने कहा तो उदाहरण होकर बैठ जाओ, माँ से कुछ कलाम कर लो। चला टूट हुई कब्र से आवाज़ आई, अब्बास, ये शब्बीर तुम्हारे हवाले, ये शब्बीर तुम्हारे हवाले का शहजादी शहजादी, यही हमने बचपन से मुझे सिखाया गया है, हम जानते हैं, इसीलिए हम उनको आका कहते हैं, भाई नहीं कहते। जनाब शहजादी ने कहा कि तुम अली की तमन्ना हो, अली की तमन्ना हो। तो गवाराने मंजूर में करबला सबसे विदा होने के बाद, अलविदा होने के बाद, और जनाब इमाम हुसैन कुर्सी नशीन हुए, बैठे। एक एक की अमारी आ रही है, सुनना चाहोगे? एक एक की अमारी आ रही है, एक एक की अमारी आ रही है। इधर फरवा की अमारी आई और एक की अमारी बिठाई जा रही है। मगर तारीख का कलेजा उस वक्त फटा जैसे ज़ैनब पहली बार घर से निकल रही थी, अली की बेटी पहली बार घर से निकल रही थी। जब वो निकल रही थी तो जनाब अब्बास ने कहा, जरा रुकिए मौला अकबर, जरा रुको, इसलिए कि हम चाहते ये है कि हम पर्दा कराना चाहते हैं, हम पर्दा कराना चाहते हैं। एक मर्तबा अब्बास आसमान जब देखने के बाद अलहिजाब लोगों ने कहा कि किसको पर्दा कराना चाहते हो? तो अब्बास ने कहा कि दुनिया की सारी मखलूक को, आसमान की सारी मखलूक को, इसलिए अली की बेटी आ रही है, अली की बेटी आ रही। अरे ज़ैनब इस मंजर को देखा, देखने के बाद अब्बास, अरे मख्तल के बाद कूबे में आ जाना, करबला के बाद आ जाना, कहीं कूबों
अगर होगा तो आज न पर्दे का एहतमाम कर रहे हो, यही तुम्हारी बहन होगी बेमकनो चादर तमाशाई तमाशा देखने के लिए, और ये एक आवाज में कहेंगे ये रसूल की नवाजी है, ये अली की बेटी है, ये बेमकनो चादर है। ए अब्बास उस वक्त महागाया Wow.